যুগ যুগ ধরে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে সরজুরেই পবিত্র জল পাপ ধুয়ে মোক্ষ এনে দেয়। কিন্তু অযোধ্যার ঠিক কোন ঘাটকে বলা হয় মোক্ষদায়িনী? আজ এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যার প্রতিটা ইটের নিচে লুকিয়ে আছে রামায়ণের শেষ অধ্যায়ের স্মৃতি। আপনি কি জানেন সেই জায়গার নাম? অযোধ্যার এই লুকানো ইতিহাস আর বিশ্বাসের গভীরে যাওয়ার এই সফর একা শেষ করা যাবে না, সঙ্গী হতে হবে আপনাকেও। তাই এমন আরও অজানা ও রোমাঞ্চকর জায়গার খোঁজ পেতে সাবস্ক্রাইব করে এই যাত্রার অংশ হয়ে যান, আর বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না যেন। স্নান করবি তো? অযোধ্যা বৃন্দাবন সিরিজের নতুন একটি এপিসোডে আপনাকে স্বাগত জানাই। তৃতীয় পর্বটি আনতে একটু দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী, কিন্তু এই পর্বটি দেখে আশা করি আপনি নিরাশ হবেন না। পবিত্র সরজু নদীর দুটি প্রসিদ্ধ ঘাট রামকি পাইরি ও গুপ্তার ঘাট, যা মোক্ষদায়িনী নামেও পরিচিত, তারই কাহিনী নিয়ে তৈরি আজকের পর্বটি, যেখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জীবন থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃত রয়েছে। আরও অনেক কিছু নতুন জানতে পারবেন, তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবার অনুরোধ রইল। এই সিরিজেরই প্রথম পর্বে দেখিয়েছি পুনর্নির্মিত রাম মন্দির, হনুমানগড়ির মাহাত্ম্য আর রাজোদ্যার মন্দিরের ইতিহাস, আর দ্বিতীয় পর্বে নেতাজি ও গুমনামি বাবাকে নিয়ে করা একটি স্পেশাল এপিসোড, যা না দেখে থাকলে আপনাকে একবার দেখার অনুরোধ রইল, যার লিঙ্ক স্ক্রিনের ডান দিকে ও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলাম। এসে পড়েছি অযোধ্যার সবচেয়ে প্রাণবন্ত এবং পবিত্র স্থান রামকি পাইরিতে। सरयू की लहरों में शाम ढली, मन में बस राम की ज्योत जली, चुपके से वो पास आ गए, सारे दुख दर्द बिसरा गए, आत्म को शांति मिल गई। মান্যতা আছে ভগবান স্বয়ং এই ঘাটে স্নান করতে। सरयू की আমরাও लहरों में পবিত্র शाम সরজু নদীতে স্নান ढली, করার সৌভাগ্য লাভ मन করি। में बस राम জলে নামার की এই মুহূর্তটা ज्योत ছিল जली, এক অনন্য অনুভূতি, चुपके से वो যেন শুধু শরীর নয়, মনও এক सारे অদ্ভুত दुख প্রশান্তিতে ভরে दर्द উঠেছে। बिसरा गए, आत्म को शांति मिल गई। এখানকার এই নিরবিচ্ছিন্ন জলধারা আর প্রতিদিন সন্ধ্যার মহাআরতি যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি করে। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে লতা চক। লতা মঙ্গেশকরের নামে এটাকে উৎসর্গ করা হয়েছে এই জায়গাটা। उन्हीं के याद में चौक भी बनाया गया, बीड़ा रखा गया। হ্যাঁ, और ये वाला ये जो है এখানে শুধু রামই রাম। ये सामने धर्मपथ है। ये धर्मपथ, धर्मपथ। हाँ 2 किलोमीटर का। আচ্ছা, ওয়াও। জয় শ্রীরাম। সমস্ত ঘটনা এখানে ছবির মাধ্যমে দারুণভাবে দেওয়া আছে, দারুণভাবে। प्रभु श्री राम की बानर सेना तथा राक्षसों के साथ घनघोर युद्ध। राम राम राम। हाँ हाँ, भर्ती होती है, यहीं से जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे डोगरा रेजिमेंट ना? अच्छा,
यहाँ पे ट्रेनिंग होता है? हाँ लेकिन अच्छा। बहुत दूर भरे में है। इसका रेंज कम से कम 5 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। ओह, और ये एरिया यहाँ पे क्या है? डोगरा रेजिमेंट ये इस तरफ बाएं तरफ। इस तरफ এদিকে ডোগরা রেজিমেন্ট। এবারে আমরা চলেছি মোক্ষদায়িনী অর্থাৎ গুপ্তার ঘাটের দিকে, যেখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সরজু নদীতে অন্তর্ধান হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করেছিলেন। তার সাথে জানবেন সরজু নদীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে কোথায় প্রবাহিত হয়েছে, কেনই বা এই ঘাটের নাম মোক্ষদায়িনী হলো, আরও অনেক কিছু। চলুন তবে এগিয়ে যাওয়া যাক। এই যে বাউন্ডারি, ওর পেছনেই আছে নদী। ये वाला जो है जमखरा घाट है। हाँ, जमखरा घाट। जमखरा। हाँ जमखरा घाट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से बताइए भैया। इसको जमखरा घाट बोलते हैं। हाँ। इसके आगे जाकर पड़ रहा है गुप्तार घाट, गुप्तार घाट सामने ही, सामने की तरफ। सामने गुप्तार घाटेর সামনে গিয়ে हाँ यहाँ से मान चलिए 300 मीटर की दूरी पर है और आगे মাত্র 300 মিটার দূরত্ব এখান থেকে গুপ্তার ঘাট। गुप्तार घाट। হ্যাঁ, গুপ্তার ঘাটে গিয়ে বলবো এখানকার আসল রহস্য, কে কি হয়েছিল। রাস্তাটাও দারুণ, প্রচুর গাছপালা, আর গরম সেরকম একটাই লাগছে না। এমনি গরম রয়েছে কিন্তু এখানে একদমই গরম লাগছে না। তো ছায়া রাস্তা, গাছের কি মহিমা, গাছের কি গুরুত্ব থাকলে বোঝা যায়, না থাকলে পরে বোঝা যায় না। হ্যাঁ, এখান থেকেই ডোগরা রেজিমেন্টের कौन है ये? रावण। हाँ, अरे ये रावण देख लीजिए, इस तरफ दिख रहा है। रावण। हाँ रावण। ওই দেখো রাবণের মূর্তি। और उसके बाद में अभी ये हनुमान जी जो पर्वत लेकर चल रहे हैं, हाँ। ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद में वहीं पर उनकी सेना भी बैठी है, देख लीजिए वो बैठी है। हाँ हाँ, ओ ওই তো বানর সেনা। देखिए, उनकी बानर सेना भी वहीं पर है हाँ हाँ, नीचे। और उसके बाद फिर है ना बहुत, इसलिए हाँ उसके बाद में जटायु ये आगे आपको दिखेगा। ये कंप्लीट हो गया ना। हाँ ये रहा जटायु, ठीक है ना। और उसके बाद में जटायु के आगे वो हैं, क्या कहते हैं, राणा प्रताप वो रहे। राणा प्रताप। हाँ ये जटायु का है चित्र। अभी ये सब बन रहा है पार्क पूरा। ও পার্ক এটা না। हाँ ये पार्क बन रहा है। अच्छा। इसको मान चलिए बनने में अभी 2 साल लगेंगे। কমপ্লিট হলে পরে আরো ভালো লাগবে। हाँ उसके बाद में ये आम आदमियों के लिए खोल दिया जाएगा। আচ্ছা, सब घूमेंगे आप सब जब आएंगे दोबारा। और ये गार्डन पार्क है इस तरफ, कंपनी गार्डन। এখানে সুন্দর পার্ক বানানো হচ্ছে। কিছুই কমপ্লিট হয়নি, বছর দুয়েক আরও লাগবে। ভবিষ্যতে আসবে যখন, তখন আবার এগুলোকে, এই জায়গাগুলোতে এনজয় করবো। भगवान राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, प्रजा सहित गुप्त जी, जिस प्रकार गंगा जी निकली है भोलेनाथ के जटाओं से, उसी प्रकार सरयू मैया निकली है भगवान विष्णु जी के नेत्र से। जैसे मनुष्य के कई नाम होते वैसे इनका भी 3 नाम, सरयू मैया, घाघरा मैया, नेत्रजा मैया। ये कैलाश मानसरोवर झील से आई हैं, नेपाल के रास्ते यहाँ आई। यही गुप्तार घाट, अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती होते ये पटना गंगा जी में मिल जाती। ये भगवान के ज़माने में गौ प्रकाश घाट, यहाँ भगवान आए थे। जो कुवार का पितरपक्ष का श्राद्ध का महीना होता है, जिसे हम लोग पितृपक्ष बोलते हैं, उस महीने में भगवान राम जी अयोध्या से पैदल चल के आए। यहाँ राम के रूप में गए थे विष्णु भगवान। यहाँ पे आए, स्नान किए। कहे हैं सबसे पहले माता सीता जी अपने शरीर को त्यागी, धरती मैया फटी, सीता मैया समाई। नंबर 2 पे लक्ष्मण जी अयोध्या में, जो राम की पैड़ी है उसी के बगल लक्ष्मण किला घाट। लक्ष्मण जी वहाँ गए। यहाँ 3 भाई राम, भरत, शत्रुघ्न, प्रजा। कैसे गए?
भगवान यहाँ श्राद्ध के महीने में आए यहाँ स्नान किए। यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ सरयू मैया उल्टी दिशा में चलती है। यहाँ दक्षिण से उत्तर को, यही आप अयोध्या जाएंगे यहाँ से 9 किलोमीटर, तो वहाँ पश्चिम से पूरब, दक्षिण होता है पितृलोक। भगवान यहाँ स्नान करने के बाद अपने पूर्वजों का तर्पण किए, अपने पिता राजा दशरथ का अंतिम पिंडदान नहीं किए, इसीलिए इनको बोलते हैं सरयू मैया मोक्षदानी। यहाँ पे पितरों के नाम से तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब भगवान तर्पण पिंडदान करने के बाद सरयू जी में गए कमर भर जल में, हो गए विष्णु भगवान। भरत जी को शंख बनाए, शत्रुघ्न जी को चक्र, अपने दोनों बाजुओं में समा लिए। ऊपर से विमान आता है, भगवान विमान में बैठ के वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो अयोध्यावासी प्रजा कहती है प्रभु हमको भी ले चलिए, कहते हैं आ जाइए। पर वो प्रजा नहीं थे, वो देवी देवता थे जो भगवान के साथ में आए, उन्हीं के साथ में चले गए। इनके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा बसे हजार, एक निमित्त सरयू बसे तुले न तुलसी दास। जैसे सब तीर्थों का मस्तक है अयोध्यापुर, जहाँ भगवान जन्म लीन खेलिन कुदिन बढ़ावे, उसका मस्तक है ये गुप्तार घाट, जहाँ से भगवान राम जी अंतर ध्यान हुए वैकुंठ धाम को गए। जब दौड़े दौड़े हनुमान जी आते हैं तो विमान रुक जाता है, कहते हैं अरे ये कौन आ गया जो हमारा विमान रोक दिया। पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनका भक्त हनुमान, कहे प्रभु हमको भी ले चलिए। कहे तुम चले जाओगे तो कलयुग में राम का नाम कौन ले, इसलिए हमारे भक्तों की रक्षा कौन करेगा। उनको अजर अमर का वरदान सीता मैया ने लंका में ही दी है। उनको उठा के अयोध्या का राजा घोषित कर दिया, जो इस समय आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी कहते हैं पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। जैसे वो हनुमानगढ़ी वैसे ये गुप्तारगढ़ी। अयोध्या में पाप का नाश होता है, यहाँ पे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सब जगह जाएंगे भगवान के हाथ में शस्त्र पाएंगे, धनुष बाण पाएंगे, यहाँ मेन मंदिर में नहीं है। क्यों नहीं है? जब उन्होंने रावण को मारा तो उनको ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण है। अपना अस्त्र शस्त्र सब अयोध्या कनक भवन में त्याग करके वहाँ से पैदल रहे, इसीलिए वो जन्मभूमि है, ये तपोभूमि। इस मंदिर से सीख ये मिलती है, जो खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ जाएंगे, न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाएंगे। जैसे कहते हैं घर में झगड़ा हो, लड़ाई हो, अकाल मृत्यु हो, घर में बाल बच्चे परेशान रहते हो, ये सब पुत्र दोष के कारण होता है। जैसे ऊपर देव लोग वैसे नीचे पितृ लोग। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं दरस परस, आप कहीं भी नहाए, होटल पे नहाए, घर पे नहाए, यहाँ आए हैं तो इच्छा करे स्नान करिए, नहीं तो जल छिड़किए, 2 बूंद चरणामृत कीजिए। इधर मुँह करके जैसे माता न हो, माता पिता दादा दादी आजी आजा नाना नानी सास ससुर जो ना, उनको जल दीजिए। क्यों? क्योंकि 15 दिन के लिए यमलोक का द्वार पितृपक्ष में खुलता है, यहाँ हमेशा खुला रहता है। यहाँ चाहे जब आप तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैकुंठ धाम के स्वामी विष्णु जी ने राम के रूप में आकर स्वयं तर्पण और पिंडदान किया था। आए थे राम के रूप में, गए थे विष्णु भगवान के, आए थे इंसान के रूप में, लेकिन गए थे भगवान के रूप में। जय श्री राम। भगवान राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी प्रजा सहित गुप्त हुए, तब इसका नाम पड़ा है गुप्त हरि चक्र हरि गुप्तार घाट। बहुत लोग कहते हैं भगवान समाधि यहाँ लिए, कहते हैं ना, लेकिन भगवान समाधि नहीं लिए। समाधि उसको कहते हैं जिनका सौ मिलता है। भगवान तो न कभी डूबते हैं न कभी मरते हैं, सिर्फ रूप बदलते हैं, लीलाएं करते हैं। आज भी सरजू जी में भगवान अंतर ध्यान है। गए तो राम के रूप में, लेकिन हो गए थे विष्णु भगवान के रूप में। एक बार प्रेम से बोलिए सरयू मैया की जय। जय। ये सरयू मैया जिसमें भगवान अंतर ध्यान हुए, वैकुंठ धाम को गए। एक धरती मैया जिस पे हम लोग चलते हैं रहते हैं, एक आकाश और एक सूर्य भगवान और एक हनुमान जी जो आज भी अजर हैं अमर हैं, लेकिन किस रूप में है ये कोई नहीं जानता। तो भगवान के जमाने की 5 चीज सत्य है। सच्चाई यही तो देखनी है कि हाँ, अगर ये सच नहीं होती तो यहाँ मूर्तियाँ क्यों हैं?
क्योंकि हर जगह का महत्व अलग होता है। राम राम जय श्री राम। राम राम जय श्री राम। ভ্রমণ তো কেবল জায়গা বদল নয়, राम ভ্রমণ হলো বিশ্বাসের সাথে মিশে যাওয়ার এক চিরন্তন যাত্রা। রাম কি প্যারির কোলাহল থেকে গুপ্তার ঘাটের এই নিস্তব্ধতা প্রমাণ করে অযোধ্যা কেবল একটি শহর নয়, এ এক অনুভূতির নাম। আজ তবে এ পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর কমেন্টে জানান আপনি নতুন কি জানলেন। পরের পর্বে ফিরছি রামচন্দ্রের সবচেয়ে প্রিয় ভাই ভরতের সমর্পণের কাহিনী নিয়ে, জানব মণি পর্বতের ইতিহাস। ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন। সরজুর এই পবিত্র জলের ছোঁয়া আপনার জীবনেও বয়ে আনুক শান্তি। জয় শ্রীরাম।